Hello, aspirants, and welcome back to our channel. Let's have the Hindu analysis dated 16th November 2021. So, let's start today's discussion. The first article is about the pollution or the recent severe condition that happens in that has been seen in Delhi. Urban factor, not farm fires, cause of pollution. It was a very big question that the increasing pollution of Delhi, what is it exact reason? Is it because of stubble burning, or is it because of the human intervention, the construction sites, or the pollutions of vehicle? And the report state it is not because of stubble burning, it is because of the constructions and vehicle pollution that has happened recently. Supreme Court on Monday said the cat is out of the bag to prove that urban factors such as construction activities, industries, vehicular exhaust, and road dust were actual major cause of pollution in Delhi and not because of the farmers' stubble burning. If you will see actual data, the data states that out of the actual pollution that has happened in Delhi, only 10% contributes of the stubble burning. Out of all the reasons, only 10% reason is out for the stubble burning for the reason of pollution. In the previous hearing, the court had questioned the narrow focus of center and Delhi government on farmers. You say 76% of the pollution is caused by the industry, vehicle, constructions, and due to the stubble and not due to the stubble burning. So cat is out of the bag. You are now trying to target the pollution that is insignificant. ये चीज़ हमारे सुप्रीम कोर्ट के जज ने बताया कि अब जब क्लियर हो चुका है कि स्टबल बर्निंग एक्चुअल रीज़न नहीं है, सो नाउ व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? आप क्या इनिशिएटिव ला रहे हो कि ये चीज़ को कम कर पाओ? So during the hearing of the court found that Center's Commission for Air Quality Management in the National Capital Region, in the NCR region, and the adjoining area act had not over the week precisely chalked out the plan to immediately grab the pollution control the pollution. So हमने परसों ही देखा था कि ग्रैब का गैड बोले थे ग्रैब का गाइडलाइंस लाएंगे जो कि लोगों को फॉलो करना है सो दैट पोल्यूशन कम कर पाए. वन ऑफ द सोल्यूशन जो ग्रैब ने दिया था बहुत पहले, जो कि उस रीजन में लाया गया था एंड बॉस इट वॉज प्रूव टू बी बेनिफिशियल लाइक ऑड एंड इवन जो गाड़ी का किया गया था. सो इट वॉज इन द ग्रैप ओनली जो कि बेनिफिशियल निकला. सो अगेन उन्होंने क्वेश्चन किया द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंटर टू कॉल एन अर्जेंट मीटिंग इन 24 hours with Delhi, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh to craft the effective anti-pollution measures and their implementation. The court also attacked Centre, Punjab, Haryana, Uttar Pradesh to introduce the work from home now. ठीक है, तो ये चीज़ को कम करने के लिए, क्योंकि स्टबल बर्निंग का अभी भी ये बोला गया है कि अप्रॉक्सली अगर हम सिर्फ पोल्यूशन पे देखें लार्जा पे तो 10 है, बट एग्जैक्टली सिर्फ इस रीजन में देखें तो 35% का कुछ रीज़न स्टबल बर्निंग बनाता है. बाकी सब रीज़न तो हमारे बाकी के जो कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं, जो व्हीकल पोल्यूशन वो बनाते हैं. अब इसका नेक्स्ट हियरिंग जो है वो 17 नवंबर को रखा गया है. लेट्स सी 17 नवंबर को क्या नए चेंजेस या इनिशिएटिव हमें गवर्नमेंट ला के देता है सुप्रीम कोर्ट के बोलने पर. द नेक्स्ट आर्टिकल इज़ अबाउट द करतारपुर कॉरिडोर. हमने कुछ दिन पहले भी सुना था कि ये चीज़ था कि करतारपुर कॉरिडोर ओपन करने की बात की जा रही थी ताकि जो सिख पिलग्रिमेज है वो लोग अपने गुरुद्वार को टूर कर पे आए या फिर वापस वहाँ पे से अपने पिलग्रिमेज करवा करके आए. तो उसी पर ये आर्टिकल आज आया है कि गवर्नमेंट ने रीओपन करने की बात की है फ़िलहाल के लिए. Nod awaited from PMO ahead of Guru Purab on 19 November. पाकिस्तान has issued, पाकिस्तान की तरफ से भी देखा गया था कि 3000 विजिटर्स ने वीज़ाज इशू किए थे टू गो फॉर करतारपुर पिलग्रिमेज. अगर
वैसे देखिए तो इट इज़ एन अपडेशन ऑफ योर नॉलेज ओनली कि गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली कंसिडर्ड द रीओपनिंग ऑफ करतारपुर साहिब गुरुद्वारा कॉरिडोर टू पाकिस्तान दिस वीक टू अलाउ द सिख पिलग्रिमेज टू क्रॉस ओवर मोर देन 20 months आफ्टर द शटडाउन, जो कि कोविड के पैंडमिक के सिचुएशन के वजह से उसको बंद कर दिया गया था. So, according to the government sources, the Ministry of External Affairs and Ministry of Home Affairs have cleared the proposal and are waiting for the final clearance from the PMO's office. ठीक है, with the view of opening the route. ये बोला गया था कि 19 नवंबर को ये रूट ओपन कर दिया जाएगा जी, क्योंकि 19 नवंबर हमारी गुरु नानक जो सिख गुरु नानक जयंती मनाई जाती है, बर्थ एनिवर्सरी उनकी मनाई जाती है, तो उसी दिन ये प्रकाश पर्व को ओपन करेंगे सारे हिल पिलग्रिमेज के लिए. So ahead of the Guru Purab, Pakistan's government had already issued around 3,000 visas of Sikh pilgrimage to visit Gurudwaras in Pakistan, including to Guru Nanak's birthplace, Nakhana Sahib. Nakhana Sahib. Pakistani officials could not confirm whether the Indian government had already communicated its desire to reopen the corridor, but the officials of the Hindu ने स्टेट किया कि करतारपुर कॉरिडोर को अब बंद नहीं रखा जाएगा और उसको इंडियन सिख पिलग्रिमेज के लिए ओपन करेंगे. सो अब तक डायरेक्ट क्लियरेंस अभी तक नहीं आई है, बट येस अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल्स जो ये चीज़ कंफर्म की कि वो ओपन करेंगे. Land travel between India and Pakistan has been conducted on a limited scale through the Atari Wagh integrated check post. उधर से ही इनकी मेन ट्रैवलिंग की जाती है फॉर गोइंग टूवर्ड्स दैट एरिया फॉर द पिलग्रिमेज. जो हमारा वाघा बॉर्डर वाला जो एरिया है वहाँ से ही उनका मेन ट्रैवलिंग करवाया जाता है फॉर एनी ऑफ दी पिलग्रिमेज. तो ये बोला गया कि अब गवर्नमेंट जो है इसको ओपन करेंगी फॉर द पीपल ऑफ इंडिया. Now we'll move to the next article. Next editorial जो है कहीं ना कहीं EU के रोल के ऊपर बात करता है when it comes to इंडो पैसिफिक. ठीक है, इंडो पैसिफिक में स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ये आर्टिकल ने इंडिया और चाइना के पर्सपेक्टिव में बोला है कि यूरोपियन यूनियन का क्या रोल रहा है इंडियन ओशन या इंडो पैसिफिक रीजन में और उनका आगे जाकर क्या रोल बन सकता है. So the Indo-Pacific region has acquired a striking silence with US-China strategic confrontation becoming sharper than before. उसी के साथ साथ हमने देखा था कि कंटिन्यूसली स्पीडी डेवलपमेंट हुआ जा रहा है. स्पीडी डेवलपमेंट किसको लेकर, क्वाड को लेकर हमने देखा कि रिसेंटली कितना डेवलपमेंट किए हैं या कितने चेंजेस किया है. क्वाड के साथ ही अगर मैं बात करूँ तो EU के US में भी, ऑस्ट्रेलिया UK US के बीच में भी एक कंप्रोमाइजिंग या फिर एक स्पीडी डेवलपमेंट चेंजेस देखा जा रहा है कंट्रीज़ के बीच में. कहीं ना कहीं एडिटोरियल में ये चीज़ दिखाया है कि समहाउ ये रिलेशन को डिफाइन करने के लिए इट इज़ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड. So it is complicated. Why? So Europeans Asian connect is very old, strong and multi-layered. Asia is viewed and evaluated through the national and regional perspective. This explains that why at least since 2018 countries like France, Netherlands, Germany, UK announced a specific policy towards the Indo-Pacific. So कम अभी जाकर सब हम देख सकते हैं कि लोगों ने इंडो पैसिफिक में अपना रिलेशन अच्छे बनाने की कोशिश करना स्टार्ट किया है या खुद का प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं बाकी कंट्रीज़. उसी के साथ हम देखेंगे चाइना का राइज बहुत ज़्यादा हुआ है व्हेन इट कम्स टू यूरोपियन यूनियंस डिसीजन और द इन्फ्लुएंस ऑफ द कंट्रीज़. So, seen from the Brussels, the European Union and the Indo-Pacifics are the natural partner region. The European is already a significant player in the Indo-Pacific island states, but the strategy aims to enhance the engagement across the wide spectrum. ठीक है, इसमें एक चीज़ दिखाई गई है दैट इज़ अबाउट द अप्रोच टू चाइना एंड इंडिया. इंडिया एंड चाइना के अप्रोच में यूरोपियन यूनियन का क्या रोल हो सकता है वो बताने की एक बार कोशिश की गई है इसमें. सो द यूरोपियन यूनियन सफ़र्स फ्रॉम मार्क्ड
internal divisions, many states view China as a great economic opportunity. हम क्यों बोलेंगे कि चाइना को इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखा जाता है? क्योंकि somehow चाइना इज बिकमिंग कंटिन्यूसली अ डेवलप्ड कंट्री, और चाइना उतनी अपॉर्चुनिटीज़ देता है दूसरी कंट्रीज़ को व्हेन इट कम्स टू इकोनॉमिक बेसिस। उतना इकोनॉमी हेल्प मिलता है, उतना डेवलपमेंट, उतनी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है। वो अलग बात है कि चाइना खुद के लिए वो करता है, बट दूसरों कंट्रीज़ की भी उसमें हेल्प होती है। सो चाइना को आज मोस्ट ऑफ द कंट्रीज जो है वो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी के पर्सपेक्टिव से देखता है। सो द रिस्क ऑफ फेसिंग द यूरोपियन यूनियन आर वेरिड. Russia next door is more traditional threat. It is increasing on China's side, hence European Union should find it easy to cooperate with Quad. ठीक है। सो रशिया को यूरोपियन यूनियन एक तरह से हम बोल सकते हैं एक उनको थ्रेट लगता है, बिकॉज हमें पता है इंडो पैसिफिक रीजन में रशिया का भी बहुत बड़ा रोल है, बिकॉज सेम रशिया भी उतना हेल्प करता है, उतना डेवलपमेंट का मौका देता है सभी कंट्रीज़ को। सो येस, वो एक थ्रेट बन सकता है, जिसके वजह से यूरोपियन यूनियन का शायद ऐसा मानना है कि क्यों ना हम डायरेक्टली क्वाड के कंट्रीज़ के साथ अपना रिलेशन ज़्यादा अच्छा बनाएं, क्योंकि क्वाड के कंट्रीज़ के साथ अगर रिलेशन अच्छा रहेगा तो इंडो पैसिफिक रीजन में उनका उतना हम बात करें तो उतना सस्टेनेबिलिटी उस रीजन में रहेगी। However, AUKUS has muddled the water especially for फ्रांस। फ्रांस का रीज़न हमें पता है, जो ऑस्ट्रेलिया ने किया कि बोला कि हम आपसे वो चीज़ की प्रोक्यूरमेंट करेंगे, सबमरीन्स और सारी चीज़ को, बट आखिरी मोमेंट में उनको कैंसिल कर दिया। तो समहाउ ये बोला जा रहा है कि रिसेंटली जो AUKUS वाला चीज़ हुआ था वो दूसरे कंट्रीज़ को कुछ बेनिफिट नहीं दिया अदर देन दी कंट्रीज इटसेल्फ। India has a reason to be pleased with the EU's policy. India's pivotal position in the region's necessitates a closer India-EU partnership. The India-EU leaders meeting on May 8, followed by the External Affairs Ministers' Gymnich meeting in Slovakia, वर डिज़ाइन टू फॉस्टर दी न्यू सेंचुरीज। तो कहीं ना कहीं इंडिया और ईयू के बीच में भी यही बात किया जा रहा है कि इंडिया और यूए या फिर ईयू जो है उनके बीच में अपना एक पॉजिटिव रोल बनता जा रहा है, क्योंकि समाव वो इंडिया के लिए बेनिफिशियल है, इंडिया को उतना सपोर्ट और इंडिया को उतना हेल्प मिल रहा है टू बी डेवलप्ड और टू कम आउट मैनी ऑफ दी क्रिटिकल सिचुएशन। सो समाव ये चीज़ बताई जा रही है कि ईयू जो है वो उनको वो पोजीशन बनाकर दे रहा है इंडो पैसिफिक रीजन में, जिसकी वजह से कंट्रीज़ खुद ब खुद मोर कोऑपरेटिव कंट्रीज़ बनकर इमर्ज हो रही है या लोगों को दिख रही है। उसके बारे में यही बोला गया है दैट ईयूज़ रोल इन द इंडो पैसिफिक। नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल। अगला आर्टिकल जो है वो हमारे WPI पे बात कर रहा है। WPI इन्फ्लेशन क्विकन्स इन 12.5। सो हमारा जो होलसेल प्राइस इंडेक्स है, इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से ये चीज़ मैंने आप लोग को पहले भी बताया था कि जब हम कंट्रीज़ का कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से या हम जब इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव से चीज़ें या कमोडिटी के प्राइस गिनते हैं तो पहले वो CPI के नाम पे किया जाता था, दैट वाज दी कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। बट अब जो है सारी कमोडिटीज़ हमारे 6 डिफरेंट डिपार्टमेंट में ही बट WPI के पर्सपेक्टिव से गिना जाता है, दैट इज़ द होलसेल प्राइस इंडेक्स। होलसेल प्राइस पे फिर हमारी इंडिया की GDP या इंडिया की इकोनॉमी मेजर की जाती है। ठीक है। सो उस पर क्या नोटिस किया है रिसेंटली ये मंथ में नोटिस किया गया है कि WPI जो है कंपैरिजन टू 5 मंथ जो हमारा फ़िलहाल बढ़ चुका है बाय 12.5%। ठीक है, क्योंकि सितंबर में वो 10.7% था और वो राइस हो गया अभी 12.5% आ चुका है। समहाउ मोस्ट ऑफ द कमोडिटी इसमें जो रीज़न मान रहे हैं ये राइस का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्यूल एंड पावर। फ्यूल एंड पावर क्यों, तो इंडेक्स से हम देख सकते हैं रिसेंटली पेट्रोल और ये सब के प्राइजेस चेंज हुए हैं और हमारा फ्यूल कोल को लेकर कितना शॉर्टेज हुआ था, कोल को लेकर कितना इश्यूज हुआ था, समहाउ दैट कैन लीड टू इन्फ्लेशन, और जिसकी वजह से ये प्राइस इंडेक्स हमारा इतना लार्ज नंबर में फ्लक्चुएट हुआ है इन वेरी वेरी शॉर्ट टाइम। सो इकोनॉमिक्स रेकन दैट कोर
wholesale price inflation hits the fresh all-time high 11.9 in October and seventh month in the row by doubling the digital spike. ये बोला गया कि नंबर्स में जो है वो नंबर्स डबल हुए हैं, नंबर्स में इंक्रीजमेंट हुआ है. द रीज़न फॉर इट इज़ fuel and power surge. So inflation in fuel and power category shot to 37.2%, जो कि 25% था वो बढ़कर 37.2% आ चुका है. वाइल दी मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन भी वो भी हार्डन हो चुकी है 12% से. सो समहाउ कहीं ना कहीं दो मेन रीज़न देख रहे हैं इन्फ्लेशन राइज का, WPI के इन्फ्लेशन राइज का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फ्यूल एंड दी पावर चेंजेस जो रिसेंट मंथ में हुए हैं. एंड इट हैज समहाउ ओनली दिस टू थिंग्स हैव चेंज दी होल इकोनॉमीज प्राइस और होल इकोनॉमीज डेटा. फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा नंबर्स पे दिखे हैं बिकॉज ऑफ द टू थिंग. ठीक है. नाउ विल मूव टू द नेक्स्ट आर्टिकल. अगला आर्टिकल हमारे इस मीटिंग के बीच बारे में है, जो मीटिंग कल भी हुई थी, जिसमें कल परसों भी हुई थी, जिसमें हमने देखा था कि यूएस और चाइना के बीच में ये साल इतने मीट्स या उतने टेलीफोनिक कॉल्स नहीं हुए हैं. बट वो मीट जो सेकंड टेलीफोनिक कॉल हुआ था उसके बाद ही नेक्स्ट इन्होंने बोला कि हम और एक मीटिंग रखेंगे वाया वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसमें कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव चेंजेस दिखने की बात की गई है, एक पॉजिटिव चेंज लाने की बात की गई है. क्योंकि उससे पहले वाला जो टेलीफोनिक कॉल था उस पर हमने नोटिस किया था कि ताइवान को वो लोग टॉपिक डिस्कशन में नहीं लाना चाहते थे, बिकॉज उसकी वजह से ये अज्यूम किया गया था कि चीज़ें और ख़राब हो जाएंगी. बट अब ये बोला जा रहा है कि ताइवान पे भी वो लोग डिस्कस करेंगे एंड दे विल वो लोग एक वे आउट निकालेंगे ताकि दोनों ही कंट्रीज़ को कोई भी नुकसान ना हो या दोनों ही कंट्रीज़ अपने अपने जगह पर प्रॉफिटेबल में रहे. So the US President Mr. Joe Biden will discuss the guardrails to the guardrails is like protection खुद की country के लिए. ठीक है. Discuss the guardrails to US China dynamics with the Chinese counterpart during the duo वर्चुअल मीटिंग्स ऑन ट्यूसडे. सीनियर ऑफिशियल ने ये चीज़ बोला एंड इसमें ये लोगों ने बोला है कि चाइनाज एक्शन टुवर्ड्स ताइवान को भी डिस्कस किया जाएगा बाय यूएस, वेयर एज यूएस विल ऑल्सो डिस्कस द रिसेंट relation of China with Taiwan between the meeting. So it's important to keep the channels of communication open. That's why President Biden initiated this meeting. We want to make it clear our intention and our priorities to avoid the misunderstandings on briefing the call on Sunday while prevailing the meeting. ये चीज़ पे वो लोगों ने सामने से खुद बात किया है. The president will also make clear that we want to build a common sense guardrail to avoid the miscalculation और misunderstandings. मंडे के इंटरैक्शन पे ये चीज़ बोला कि ये लोग अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करेंगे जिसमें दोनों ही लीडर्स जो हैं वो ये सब चीज़ों पर वर्चुअली डिस्कस करेंगे. The official listed China's coercive and proactive behaviors with respect to China's human right as well as China's extraordinary states support to enterprise and its actions in cyberspace among the issues of the evils of Monday's discussion. मंडे जो टेलीफोनिक कॉल हुआ था उसके बाद उन्होंने बोला कि दे विल हैव अ डिस्कशन. लेट्स सी अब इस डिस्कशन पे और एक चीज़ कल आएगी. इसमें और एक चीज़ दिखाई है दैट इज़ अबाउट दी ऑस्ट्रेलिया सपोर्ट. तो ये चीज़ बोला गया था कि ऑस्ट्रेलिया पे जब पूछा गया कि विल दे सपोर्ट द मीटिंग और विल दे सपोर्ट द डिस्कशन दैट इज़ हैपनिंग बिटवीन बोथ द कंट्रीज़, एंड ये चीज़ नोटिस किया गया कि ऑस्ट्रेलिया ने बोला हम अपना सपोर्ट बेसिकली इन दोनों के मीटिंग के पर्सपेक्टिव में उन्होंने नहीं दिखाई. So Australia's Defence Minister Peter Dutton has said over a weekend that it was inconceivable that Australia would join US. ठीक है. calling it inconceivable के नाम पर उन्होंने बोला कि will not support the discussion या the oral और the virtual meeting जो शेड्यूल है. लेट्स सी आगे उनका क्या चेंजेस होता है.
इन दोनों को लेकर या तैवान को लेकर. सो दैट वाज अबाउट दी रीसेंट डिस्कशन. कल भी इसके रिलेटेड कोई ना कोई आर्टिकल आएगा बिकॉज इनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कॉल आज होगी. सो क्या क्या चीज़ों पर ये डिस्कस करेंगे, लेट्स सी टुमारो. एंड दैट वाज फॉर टुडे. आई होप सो आज का आर्टिकल आपको क्लियरली समझा होगा. इफ़ यू लाइक द वीडियो, डू लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल. थैंक यू सो मच.